Yes, sir. Okay. Yes. So you know about the COPD. देखो COPD में क्या होता है, that is chronic obstructive pulmonary disease. तो उसमें क्या होता है कि when the patient take inspiration, patient inspiration तो कर पाता है but expirate नहीं कर पाता है, मतलब क्या, सांस छोड़ नहीं पाता, एक्सपिरेशन नहीं कर पाता है, एक्सपिरेशन नहीं कर पाता, दैट इज कॉल्ड द क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। और बाद में क्या होता है, दैट सीओपीडी विल कन्वर्ट इनटू द एम्फाइसेमा, सो दैट विल कन्वर्ट इनटू द एम्फाइसेमा। ओके, so what is the emphysema? Emphysema is a permanently dilatation of alveoli. Alveoli. So when it will dilate it, so what happen, whole alveoli is filled with air, but there is a no gaseous exchange will take place. अगर gaseous exchange take place नहीं होगा तो कोई मतलब है क्या उस लंग्स का, उस लंग्स के पार्ट का नहीं है, ठीक है। तो दैट इज रिमूवल ऑफ द लंग्स। रिमूवल ऑफ लंग्स इज आल्सो कॉल्ड एज द लोबेक्टॉमी बोलते हैं उसको, या तो न्यूमोनेक्टॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमोनेक्टॉमी। ओके, अदरवाइज इट इज आल्सो कॉल्ड द लोबेक्टॉमी। लोब, अगर हम लोग यू नो अबाउट दैट कि राइट लंग्स हैविंग अ 3 लोब, लेफ्ट लंग हैविंग अ 2 लोब, सर ने बताया रहेगा ना आप लोगों को? नहीं, ये नहीं बता। अच्छा, सो देयर आर द फिशर इन द लंग्स। तो अगर आप राइट लंग देखोगे तो राइट लंग में 3 लोब होते हैं, इफ यू सी इट लुक्स लाइक दिस। और यहाँ पे कैसा लोब होता है, एक ट्रांसवर्स होता है, कैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 होता है और यहाँ पे 2 लोब होते हैं। तो अगर हम लोग किसी लोब को निकाल रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड लोबेक्टॉमी, और हम लोग किसी पार्ट्स ऑफ लंग्स को निकाल रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड न्यूमोनेक्टॉमी। ओके, Okay. So can you repeat the last statement? क्या हुआ? Can you repeat the last statement? देखो, अगर हम लोग जो लंग्स के पार्ट्स होते हैं, लंग्स में लोब होते हैं, ठीक है, देयर आर द 3 लोब्स प्रेजेंट इन दैट लंग्स, ठीक है। राइट लंग एंड लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं। अगर हम लोग लोब को निकालते हैं तो दैट इज कॉल्ड द लोबेक्टॉमी। लेकिन अगर हम लोग किसी लंग्स के पार्ट या मतलब कि पार्ट, किसी पार्ट्स ऑफ लोब को निकालते हैं तो दैट इज कॉल्ड द न्यूमोनेक्टॉमी। Okay, sir. Thank you. डन एवरीवन, चलें आगे। Yes, sir. Okay. Okay, so we'll solve some questions, then we'll move. Which of the following is a hallucinogen? LSD and hashish. क्या है? LSD and Hashish. Third option. Stimulants. Stimulants. Option D. yeah, caffeine, cocaine and amphetamines. Amphetamines comes under the stimulants, ठीक है। Amphetamines is also called as meds, ठीक है। Which is the following? Which is following false statement? कौन सा false statement है? First वाला. First वाला. So ganja is obtained from Cannabis. so The second one. It is wrong. barbiturates hallucinations करता है क्या? No. What is the barbiturates? Sedative. Sedatives है ना, you know ना, बेंजो, अपने ने जब sedatives आप लोगों को पढ़ाया था, benzodiazepam, barbiturates, ठीक है। so it is what tranquilizer है, I think, ठीक है। हाँ. so it is not a hallucination, ठीक है। next, which of the following is a commonly misused by the athletes? Stimulants तो amphetamine. so stimulates, ठीक है। तो क्या Option है? A ना. so that is the A. amphetamine. what is the Valium? Valium is what? Tranquilizers. It is a tranquilizer, ठीक है। heroin, what is the heroin? Opium derivatives. yeah, Opium. okay। next, the alkaloid present in a tobacco is?
निकोटामाइड निकोटीन निकोटीन, ठीक है, नॉट निकोटिनामाइड, निकोटीन। ओके, सो नाउ कम टू द एडोलेसेंस। कल हम लोग का काफी डिस्कशन हुआ था एडोलेसेंस पे, ठीक है। सो इफ यू सी अ पीरियड, व्हाट इज एडोलेसेंस? इट इज अ period or a process. It is a period and a process during which child become mature in term of his or her attitude, benefits for the effective participation in a society. Okay, adolescence is a bridge linking between childhood and adulthood. That is a period between 12 to 18 year of age. So it is a very vulnerable phase of mental, psychological and physical development. Understood? It is vulnerable. Vulnerable means it is also called as a sensitive. क्या बोलते हैं इसको? सेंसिटिव Sensitive age. सेंसिटिव। Yeah. तो प्लीज याद रखो, कल मैंने आपको बताया था इसमें आपको क्या करना रहता है, एजुकेशन में भी अच्छा करना पड़ता है, सोसाइटी में भी अच्छा बन करके रहना पड़ता है, फिर आपके ऊपर काफी सारे प्रेशर्स होते हैं, ठीक है, और भी काफी हार्मोनल लोचा ये सब चलता रहता है बॉडी में। तो दिस इज ऑल अबाउट एडोलेसेंस। Done everyone? So 1 minute. Okay. Done, sir. Okay. So now come to the what is the cause of drug or alcohol use in adolescence, ठीक है। तो adolescence में क्या होता है कि जिसकी वजह से the students or the children becomes what the alcoholic or the drug abuser, ठीक है। So first of all curiosity, what is a curiosity? मतलब जब तक हम लोग अल्कोहल पिए नहीं रहते तो अपने को पता चलता है कि अल्कोहल पीने से क्या होता है, एज अ क्यूरियोसिटी। बहुत से लोगों को इच्छा होती है ना अल्कोहल पीने के बाद क्या होता होगा, या सिगरेट पीने के बाद क्या होता होगा। सो दैट इज अ क्यूरियोसिटी, दे वांट्स टू नो कि व्हाई पीपल आर ड्रिंकिंग और द व्हाई पीपल्स आर व्हाट सो एडिक्टेड फॉर द अल्कोहल और द ड्रग। सेकंड, नीड फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट, ठीक है। आई गिव द एग्जांपल। सो व्हेन आई वाज सेकंड ईयर, जब हम लोग सेकंड ईयर में थे, सो एक स्टूडेंट था, मतलब हमारे साइड में ही रहता था, मतलब कि वी आर लिविंग द हॉस्टल। तो हॉस्टल में सीए का मतलब सीए कर रहा था स्टूडेंट, तो उसका फर्स्ट ईयर शायद हो गया था, सेकेंड ईयर में आईपीसीसी वगैरह कुछ तो रहता है उनका, वही चालू था, ठीक है। तो सेकेंड डे उस बच्चे का एग्जाम था, और मैं सिगरेट तो पीता नहीं था, अभी भी नहीं पीता, तो मेरा जो एक फ्रेंड था वो सिगरेट पीता था। तो दोनों में शर्त लग गई, उसने बोला कि तू सिगरेट नहीं पी सकता, तो सामने वाला जो सीए था बोलता नहीं मैं पी सकता हूँ, वो बोला नहीं पी सकता। ऐसे चढ़ा चढ़ा के उसको इतना चढ़ा दिया, इतना एक्साइटेड कर दिया कि दोनों पहुंच गए सिगरेट की दुकान पे। तो दोनों सिगरेट की दुकान पे पहुंच गए। अब शर्त बस ये थी कि जो मेरा फ्रेंड था वो सिगरेट खरीदेगा, और जो सीए वाला फ्रेंड था वो सिगरेट पिएगा, और वो पीने के लिए रेडी भी हो गया था, ठीक है। तो सीए दूसरा आया, तो मतलब कि उसका सीनियर था,
तो उसका सीनियर आया तो उसने चिल्लाया हम लोग को कि मतलब कि कल उसकी एग्जाम, उसकी आईपीसीसी की एग्जाम थी, उसके फर्स्ट डे ये सब चल रहा था, ठीक है, कि तू सिगरेट पिए पाएगा नहीं पी पाएगा, पी पाएगा नहीं पी पाएगा। सो दैट आल्सो हैपेंस विथ व्हाट, एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट। मतलब बोलते हैं ना कि तू नहीं कर पाएगा, नहीं मैं कर पाऊंगा, तू नहीं कर पाएगा, तो इस पे भी लोग कभी कभी स्टार्ट कर देते हैं। आपको पता है ना, सबसे पहला सिगरेट और अल्कोहल कोई अपने पैसे का नहीं पीता है। नेक्स्ट, experimentation. So many people are doing that for the experimentation, then they are addicted for that. Next, to escape facing the problem. So many problem when come to the life, people become addicted for the alcohol and drug to escape from the problems. पर problem से escape हो पाते हैं क्या? नहीं। अगर किसी को फाइनेंशियल इशू है या किसी को कोई भी इशू है, तो दारू पी लेगा तो इशू चला जाएगा? नहीं जाएगा ना। बट पीपल आर नॉट थिंकिंग दैट कि मतलब ये क्या है क्या नहीं है। ओके, नेक्स्ट, स्ट्रेस फ्रॉम प्रेशर टू एक्सेल इन द academics or examination. So the stress which come from the academics or the examination to release that. मतलब कि क्या हो गया है, मतलब ऐसा हो गया है कि मतलब ये नहीं किया जा सकता है, क्या नहीं कर सकते हैं कि मतलब कि अभी कुछ भी करना है तो मतलब एकेडमिक्स से जो प्रेशर हो रहा है या एग्जामिनेशन की वजह से जो प्रेशर होगा, तो उसकी वजह से पढ़ाई करनी चाहिए ना। आपने साल भर तो पढ़ाई की नहीं है, और साल भर आपने पढ़ाई नहीं किया हुआ है, तो लास्ट में पढ़ते हुए कुछ कर पाओगे लास्ट 10 दिन? नहीं हो पाएगा। यू नो मेनी प्राइवेट ट्यूशंस विल कॉल अस, मेनी पेरेंट्स कॉल अस कि सर आप 10 दिन आ जाओ ना, मेरी बेटी को पढ़ा दो, आप 5 दिन आ जाओ, मेरी बेटी को पढ़ा दो। अब ये बताओ कि 2 साल में उनकी बेटी ने कुछ किया नहीं है, तो मैं 10 दिन जा करके कौन सा उसको एम्स में एडमिशन दिला दूंगा? सो इट इज नॉट हैपेंस। तो मतलब अगर आपको कहीं अच्छे से एडमिशन चाहिए, ये चाहिए, तो यू शुड बी कंसिस्टेंट ना इन योर एकेडमिक्स और द एग्जामिनेशन। So people, or they are using alcohol or the drugs to escape from the pressure which coming from the academics and examination. Television, movie, newspaper and the internet. So these are the things which provoke us for the addiction of alcohol and drug. ठीक है, वो दिखाता है ना कि उसमें सलमान खान ने ऐसे दारू पिया, उसने सलमान खान ने ऐसे सिगरेट पिया। सो वी आर थिंकिंग दैट कि मतलब कि वो ऐसे पी रहा है, हम भी ऐसे पियेंगे तो हम भी अच्छे लगेंगे, ये लगेंगे, ठीक है। उनकी तो लाइफ बन गई है, तो इसलिए वो दिखाने के लिए पी रहे हैं, ठीक है, पर अपनी लाइफ किधर है? नेक्स्ट, अनस्टेबल और अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर्स एंड पीयर प्रेशर। मतलब व्हेन देयर इज अ अनस्टेबल और अनसपोर्टिव फैमिली हो गई। पीयर प्रेशर का मतलब कैसे होता है? जो मम्मी पापा का अपने ऊपर प्रेशर होता है, जैसे कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, 98% आने ही चाहिए 12th में, 98% नहीं आएगा तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ये सब चीज जो होती है, दैट इज द पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर मतलब जो अपने खून के रिश्ते होते हैं उनका जो अपने ऊपर प्रेशर होता है, दैट इज कॉल्ड द पीयर प्रेशर। ओके, अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, प्लीज राइट इट डाउन। Done everyone? Done, sir. Yes, sir. Now the addiction and dependence. What is the addiction? It is it is a psychological attachment, or you can say euphoria and a temporary feeling of well-being to drug and alcohol is called as the addiction. ठीक है, तो अगर हम लोगों को देखो किसी चीज की आदत पड़ जाती है, तो वो 24 घंटे में अपने को जैसे ही वो टाइम आता है
सो वी आर एडिक्टेड टू दैट, मतलब अगर आपको किसी चीज का एडिक्शन है तो जैसे ही वो टाइम हो जाएगा तो आपको वो चीज करने की अंदर से एक साइकोलॉजिकल फीलिंग आना चालू हो जाती है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज द एडिक्शन। विथ रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग द टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर्स इंक्रीज, ठीक है, and thus the receptor respond only to the higher dose leading to greater intake of addiction, ठीक है। जैसे आप लोग कभी दारू पिए ही नहीं हो, नहीं पियो तो आप अगर 10 ml भी पियोगे ना तो 10 ml आपको इतना चढ़ जाएगा, इतना चढ़ जाएगा कि आपको लगेगा कि क्या पी लिया मैंने, ठीक है। फिर दूसरे दिन आपको 10 ml यूज होगा क्या, नहीं, तो 10 का 20 हो जाएगा। फिर कुछ दिन में आप 1 लीटर पे आ जाओगे, 1 लीटर भी पी लोगे तो पता नहीं चलेगा और मस्त में गाड़ी उड़ी चलाओगे, ठीक है। तो दीज आर व्हाट, तो जो रिसेप्टर्स होते हैं, तो रिसेप्टर्स दैट रिस्पॉन्स, तो उनका टॉलरेंस लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वंस द टॉलरेंस लेवल इज इंक्रीज तो दे विल रिस्पॉन्स ओनली फॉर हायर डोजेज, ओके ओके। Yeah. प्लीज राइट इट डाउन। यही सेम चीज, अगर आप कोई भी चीज देखो, कोई भी चीज हो, आइदर इट इज अ सिडेटिव, कोई भी मेडिसिन हो, ठीक है, तो यू नो आफ्टर सम टाइम दैट मेडिसिन इज नॉट रिस्पॉन्ड ऑन दैट क्वांटिटी, सो वी हैव टू यूज हायर क्वांटिटी फॉर टू सी द रिस्पॉन्स। सर वो अपने क्या क्या चीज का मेजरमेंट्स लिखा है? नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मतलब जैसे अगर किसी ने अस्टेना मतलब कि पहली बार अल्कोहल पिया हुआ है, इफ ही ड्रिंक और दे ड्रिंक फॉर 10 ml फॉर फर्स्ट डे, सो इट विल बी द सफिशिएंट फॉर दैट, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर वही चीज अगर आप 10 ml आप पी रहे हो तो कुछ दिन बाद आपको 10 ml में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो देन यू मूव टू द 20 ml, 30 ml, 50 ml, फिर 90 पे आ जाओगे, कुछ दिन 90 पे चलोगे, फिर 180 पे आ जाओगे, फिर 180 से कुछ दिन 180 पे चलोगे, फिर 270 पे आ जाओगे, ठीक है। तो एज दी what time goes on, so you will increase your dose because Dose. your receptors become what, your receptor become tolerance for that dose which you take previously. Done, sir. ऐसा नहीं होगा मतलब हम लोग जितना अमाउंट मतलब फर्स्ट टाइम लिया है तो मतलब हम लोग कितने बार ले तो हमारे रिसेप्टर्स उतने स्पेसिफिक अमाउंट के लिए टॉलरेंट होंगे? तो अगर वो टॉलरेट हो गया तो फिर आपको जो करना है, आप दारू किस लिए पी रहे हो, मतलब आपको चढ़े, फिर आप थोड़े से शांत हो, मतलब कि आपका बिहेवियर चेंज होने के लिए आप दारू पी रहे हो ना। अगर आप अपना बिहेवियर चेंज करके दारू नहीं पी रहे हो तो आप अपने घर वाले के सामने भी तो पी सकते हो, हाँ है कि सर। नहीं। तो घर वाले के सामने क्यों नहीं पीते हो, क्योंकि बिहेवियर चेंज हो जाएगा, बिहेवियर चेंज हो जाएगा तो यू कैन नॉट ड्रिंक फ्रंट ऑफ योर फैमिली, है ना। तो ऐसे में बता रहा हूँ, जैसे कि अभी मेरा एक फ्रेंड था, वो मेरे साथ इंटर्नशिप से निकलता था, तो 90 का एक बॉटल लेता था और एक 250 ml का पानी लेता था। तो हमेशा क्या करता था, पानी मेरे को दे देता था पीने के लिए, जब मैं आधा पानी पी लेता था तो 90 को तो इसमें 125 में मिक्स कर लेता था, पी करके फिर बाइक से जाता था। तो मतलब कि वो दारू पीने के बाद भी बाइक चला सकता है, लेकिन अगर वही 90 में पी लूँ तो मैं शायद से खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा, ठीक है। तो दैट इज अ डिफरेंस, सो दैट इज व्हाट द आवर रिसेप्टर बिकम टॉलरेंस। अब उसके जो रिसेप्टर्स है 90 के लिए क्या हो गए हैं, टॉलरेंस हो गए, तो हो सकता है कि उसको 250 या 350 की नीड हो। मतलब पहले भी पीता होगा इसके टॉलरेंट हाँ होंगे इतना। हाँ, इसीलिए वो टॉलरेट हो गया ना, तो टॉलरेंस हो गया तो अभी मतलब सामने वाले को नहीं पता चल रहा है कि वो दारू पी करके गाड़ी चला रहा है, लेकिन उसने पिया हुआ है। तो ओके, वाटर ऐड करने से उसकी इंटेंसिटी थोड़ी रिड्यूस नहीं होती है क्या? इंटेंसिटी रिड्यूस नहीं होती है, दैट इज अ डाइल्यूटेशन, डाइल्यूशन बढ़ जाता है। तो वही डाइल्यूशन बढ़ गया है तो उसकी इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, और उसकी कड़वाहट भी कम हो जाती है ना। दे आर यूजिंग व्हाट, सोडा, दे आर यूजिंग वाटर, और कुछ लोग थम्स अप में डाल के पीते हैं फॉर द टेस्ट। डन, चले आगे। यस सर।
जो पीए होते हैं ना उनको बस आप हंसाना चालू करो, आप पंखा चालू करके जितना उनको हंसाओगे ना उनको उतना चढ़ता है. Okay, what is the effect of drug or the alcohol abuse? So if you see effect of the drug or the alcohol abuse, बियर एंड अल्कोहल में क्या फर्क होता है? कुछ भी नहीं फर्क होता है, बियर में अल्कोहल होता है. सो रेकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म एंड वायलेंस हो जाते हैं. कोमा एंड डेथ ड्यू टू द रेस्पिरेटरी फेलियर, ये इसका एग्जांपल दिया था मैंने आप लोगों को. यस सर. अभी उस दिन मेरे हॉस्पिटल में जो पेशेंट आया था, so he went into the respiratory failure, due to that he died. Okay, heart failure or the cerebral hemorrhage will take place sometimes due to alcohol abuse. Drug plus alcohol, both combination can cause death. Drop in academic performance, unexplained absence of from school, lack of interest in the personal hygiene. hygiene vision तो कुछ दिखाई नहीं देता. The people who are addicted, पी करके गटर में पड़े रहते हैं, नाले में पड़े रहते हैं, सड़क पे पड़े रहते हैं. सो देयर इज नॉट नो एनी पर्सनल हाइजीन. नेक्स्ट इज द विड्रॉवल एंड आइसोलेशन. तो वो हमेशा ऐसा सोचते हैं कि मतलब कि मैं कहीं अकेला बैठा रहा हूँ, कहीं शांत बैठा रहा हूँ, कोई घर वाले कहीं बाहर जाएं तो फिर से मैं 4 दोस्त को बुला करके पार्टी करूँ, दारू पीऊँ. ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ द बिहेवियर कब हो जाता है? सर सेरिब्रल हैमरेज में क्या होता है? सेरेब्रल हेमरेज इज आल्सो कॉल्ड द आईसी ब्लीड, ब्रेन हेमरेज, आईसी ब्लीड भी बोलते हैं. तो दैट इज इंट्रा क्रेनियल ब्लीड. तो अपना जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन क्रेनियम, पता है क्रेनियल कैविटी? या यस सर. क्रेनियल कैविटी में कौन सी 2 चीज होती हैं? एक होता है ब्रेन, ब्रेन. दूसरा होता है सीएसएफ. तो ये सीएसएफ जो होता है वो 1200 से 1300 ml होता है, समटाइम्स 1500 ml किसी किसी उसमें दिया है, और ब्रेन होता है. तो इन दोनों के अलावा अगर 5 ml चीज भी कुछ बढ़ जाती है तो इट कैन इंक्रीज द इंट्राक्रैनियल प्रेशर, एंड व्हेन देयर इज इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर विल टेक प्लेस द पर्सन हैविंग अ रिफ्लेक्स ऑफ ओमिटिंग. So patient is doing vomiting, that is the reflex of intracranial pressure. तो इसलिए देखो जिसको कभी कभी क्या होता है, लकवा मारता है और वो वोमिटिंग करना चालू कर देता है. So this is the indication of what? Brain hemorrhage or the cerebral bleed or intracranial bleed. Understood? यस सर. Done, sir. Done everyone? Yeah. Yes, sir. Next, due to that depression will come, fatigue मतलब tiredness, aggressiveness, aggression, rebellious behavior, deteriorating relationship between family and friends. ठीक है, तो क्या होता है फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी क्या होता है, रिलेशनशिप खराब होना चालू हो जाता है, बिकॉज यू नीड आइसोलेशन और द विड्रॉल फ्रॉम द अदर पर्सन. ठीक है, सो देयर इज अ डिटोरिएटिंग रिलेशनशिप. डिटोरिएटिंग का मतलब होता है खराबा. नेक्स्ट, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन दी हॉबीज. हॉबीज कुछ करने का मन नहीं करता है, बस ये करता है कि किसी रूम में बंद होकर बस पीते रहूं. Change in sleep pattern, eating habit, fluctuation in the weight and appetite. You know, the people who are drink more, so they have what? More weight. ठीक है, डिटोरेटिंग का क्या बोला? डिटोरेटिंग मतलब खराब. सो डिटोरेटिंग रिलेशनशिप मतलब रिलेशनशिप खराब होने लगते हैं विद फैमिली एंड फ्रेंड्स.
social problem like stealing, spread of infectious disease, AIDS, hepatitis will take place due to abuse of what alcohol and drug. कैसा होता है कि ऐसा क्यों होता है? You know, if people is addicted for drug and the alcohol, so they are making a physical relationship with what many persons, many different kind of the person. ठीक है, तो जिसके वजह से जो sexual disease होते हैं, तो in short you can also say STD, because if you see hepatitis B and AIDS, so both are what mainly spread through hello फिजिकल रिलेशनशिप. ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट. आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी. हाँ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, कोई भी मतलब कि फ्लूइड कांटेक्ट की वजह से दिस काइंड ऑफ द इन्फेक्शन विल स्प्रेड. डन एवरीवन. सो मींस प्रोस्टिट्यूशन के बाद एडिक्ट में एसटीडी सबसे ज्यादा होते हैं ना? नहीं, प्रोस्टिट्यूट के बाद एडिक्ट में सबसे ज्यादा. एडिक्ट ऐसा नहीं होता है कि समटाइम्स व्हाट हैपन कि जो एडिक्टेड लोग होते हैं, कि दे आर मेकिंग अ रिलेशनशिप विद एनी अदर काइंड ऑफ द पर्सन. ठीक है, तो उनका जो रिलेशनशिप बनाने की जो लिमिटेशंस होगी वो क्या हो जाएगी? अनलिमिट हो जाएगी, है ना? हेलो. हाँ अब जिसको आदत पड़ गई है कि उनको रेड लाइट एरिया में जाना है, तो वो क्या मतलब कि एक जन से रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे ना. अब कोई भी अगर प्रोस्टिट्यूशन एरिया में जा रहा है, सो दे आर मेकिंग अ रिलेशनशिप विथ एनीवन ना. तो ऐसा कोई अपना HIV का सर्टिफिकेट तो लेके घूमता नहीं है कि मेरे पास HIV का सर्टिफिकेट है, मेरे को HIV नहीं हुआ है. ऐसा तो नहीं होता है कि नहीं? यस. हाँ, तो ऐसे लोगों में क्या होता है कि they are making a relationship with what many different kind of the person. Maybe they are suffering from the HIV or the hepatitis, and they spread the HIV hepatitis through the physical relationship. done sir. Done everyone? Yeah. Okay. Next is what? Damage of nervous system and the cirrhosis. Cirrhosis of what? Cirrhosis of liver. That is the liver cirrhosis. And there is a damage of nervous system. Sometimes the alcohol, the overdose of alcohol may damage the nervous system. So use of drug and alcohol by the what pregnant women that adversely affect the fetus. So that is also by the fetus. Embryopathy देखा पढ़ा था हम लोगों ने? एम्ब्रियोपैथी पढ़ा था अभी. Yes, sir. So misuse of drug by the athletes, example narcotics, analgesic, anabolic steroids, diuretics, and some hormone to increase the muscle strength and the bulk and to promote the aggressiveness. So many drugs they are used by the athletes, ठीक है, to increase their performance or to improve their performance, which is good or bad? Bad. Bad ना. इसलिए देखो जो गरीब कंट्री होती है, बेचारे लोग के कंट्री के प्लेयर कुछ कर ही नहीं पाते हैं, बिकॉज उनको उतना फैसिलिटी भी नहीं मिलती ना. डन. 2 minutes.
ओके बायोलॉजी में जो चालू है वो तो रिवाइज करते रहो प्लीज. डोंट फॉरगेट अबाउट द 11th स्टैंडर्ड बिकॉज इफ यू सी द बायोलॉजी तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी दैट केम फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड. ओके ठीक है. यस सर. ज्यादा क्वेश्चन जो है 11th स्टैंडर्ड से आते हैं, 12th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन नहीं आते हैं. चलें आगे. So 1 minute. ओके सर 2021 का नीट कैंसिल हुआ नहीं? कैंसिल नहीं हुआ है, 12 तारीख को है ना भाई. डन सर. नीट कैंसिल नहीं करेंगे. वैसे भी 12th का एग्जाम कैंसिल किया, देखे ना 12th के परसेंटेज क्या आए हुए हैं. साइड इफेक्ट ऑफ व्हाट? एनाबॉलिक स्टेरॉइड. यू नो स्टेरॉइड इज ऑफ टू टाइप. दो टाइप का Yes, स्टेरॉइड होता है. catabolic and anabolic. गुड. तो एक होता है एनाबॉलिक और दूसरा होता है कैटाबॉलिक. ठीक है. सो इफ यू सी द एनाबॉलिक, एना का मतलब क्या होता है? Two small molecules are combined together to form a Join. big molecules. So that is the anabolic. What is the catabolic? Catabolic is what? Breakdown. One big molecules that break down into the what? Two small molecules. That is the catabolic. Understood? Clear है? So देखो जो anabolic steroids होता है, anabolic का use क्यों होता है? For the body builder. जो body builder use करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? That is anabolic steroid. But if you see the catabolic steroid having a therapeutic important. क्या? Therapeutic importance. But if you see if we are using anabolic steroid, तो anabolic steroid किसके लिए यूज होता है? बॉडी बिल्डिंग के लिए. तो आफ्टर यूजिंग एट अ सम एक्सटेंट इट्स गुड, बट आफ्टर मतलब इसका लिमिट जो ओवरडोज हो जाएगा, ओवरडोज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड कैन कॉज व्हाट? रीनल फेलियर. इसकी वजह से क्या हो सकता है? रीनल फेलियर. ठीक है. बट इफ यू सी द व्हाट कैटाबॉलिक स्टेरॉइड व्हिच वी आर यूजिंग फॉर द व्हाट थेरेप्यूटिक यूज व्हिच हैव द थेरेप्यूटिक इंपॉर्टेंस. सो इफ यू यूज कैटाबॉलिक स्टेरॉइड एज अ थेरेप्यूटिक इंपॉर्टेंस जो है for the overdose, after overdose of catabolic steroid the patient is suffering from Cushing syndrome. सर ने आप लोगों को पढ़ाया होगा ये सिंड्रोम के बारे में. Yeah. तो अगर देखो समटाइम्स अभी देखो कैसा होता है जो स्टेरॉइड होता है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेरॉइड? मैंने आपको बताया था. स्टेरॉइड जैसे ही आपने स्टेरॉइड लिया, आपके बॉडी में जितने भी पैथोलॉजिकल फंक्शंस है वो क्या हो जाएंगे? स्टॉप हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे? अरे आपके बॉडी में कुछ पैथोलॉजी हो रही है इसलिए आपको पेन स्टॉप हो जाएंगे. लेकिन अगर आपने जैसे स्टेरॉइड दिया तो जितने भी पैथोलॉजिकल और हिस्टोलॉजिकल फंक्शन हो क्या हो जाएंगे? स्टॉप हो जाएंगे. रुक जाएंगे. रुक जाएंगे.